Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and this is the continuation part of the previous lecture. In previous lecture we studied about structures. In this lecture I am going to demonstrate practically how we implement structures in C++. So this is reduce C++ ID. Let me first create the basic C++ program, and that is hash include iostream using namespace std and main return 0. Okay, this is the main program. Let's save this program. This is to lecture 3. Okay, so let me first create a structure for a time. Okay, so to create a structure, the keyword struct is used, and then we will give tag to the structure. It is convention that the first letter in the structure or class name will be capital. You can also write this with small, but it is just a convention. Okay, and we already know that structure is aggregate data type, means it is the collection of data represented using different data types. So this is a simpler program. After this I will write another program, but first we make things simple. So this time contains an integer a member, and that is hour, another integer type member, that is minute, and sorry, this is semicolon, and another int, that is second. Okay, now this structure looks like C structure. C में जितनी structures होते थे बिल्कुल इसी तरह होते थे. अब इस तरह करते हैं कि स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, सो फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप, लेट मी फर्स्ट write the structure name and then the variable name, for example t1. Now t1 is a variable of type time, means t1 has different members. The members are hour, minute and second. Each of these minute will have its own value. And how will I access these values? So in theory we have studied that we can access these members using the dot operator if we have a variable, and if we have a pointer then we can access these members using the arrow operator. Now I have the variable of type time, so I can access these members using the dot operator. So write down t1 dot or assign 9, t1 dot minute assign for example 30, and t1 dot second assign for example 15. So these are the values of t1. So if I want to print the values of t1, hour, minute, second, so I will write cout hour, or for example I want the time to print, so the time in t1 is, and write down t1 dot hour colon t1 dot minute colon t1 dot second in L. So this is our program, our basic program, and this structure is still C style structure. So write this program, run this program. The time is 9:30 and 15. ठीक है, तो जो हमने जिन मेंबर को जो वैल्यूज़ हमने असाइन की थी उन वैल्यूज़ को हमने यूजिंग डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हमने उनको एक्सेस कर दिया. सो दिस इज़ हाउ स्ट्रक्चर लुक्स इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में इनमें कुछ और फीचर ऐड हो गए. वो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सी स्टाइल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होते थे उसमें इंटरफेसेस नहीं होते थे. इंटरफेसेस मीन्स उन फंक्शंस के उन स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे. अभी हम कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस. किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको इंटरफेस क्यों बोलेंगे, तो देखें अभी यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने
हर एक मेंबर को अलग अलग एक्सेस कर दिया और उनको मैंने वैल्यू इसी तरह असाइन कर दी। अभी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह नहीं, मेरे पास एक तरीक़ा हो जिसके थ्रू मैं एक लाइन में फ़ौरन इसको वैल्यू असाइन कर सकूँ। तो इन सी प्लस प्लस वी कैन डिफाइन फंक्शंस, और ये फंक्शन इसके लिए एक इंटरफेस के तौर पर काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ वाइड, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इनसाइड दी दिस स्ट्रक्चर जिसका रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल सिट टाइम। मैंने एक सिट फंक्शन लिख रहा हूँ सिट टाइम, ठीक है, टाइम को सेट करने के लिए। मीन्स अभी मैं अलग अलग इस तरह वैल्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करूँगा और वैल्यूज़ यहाँ पर असाइन हो जाएंगे। और ये चूँकि फंक्शन है तो बाहर से इन टाइप वैल्यूज़ रिसीव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट एच, इंट एम और इंट आई। सो ये वैल्यूज़ रिसीव करेगा और इन मेंबर्स को ये इनिशियलाइज़ करेगा। अभी चूँकि मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर हूँ तो इस आवर मिनट सेकंड को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट एनी वेरिएबल ऑफ टाइप टाइम। तो यहाँ मैं लिखूँगा आवर असाइन एच, मिनट असाइन एम और सेकंड असाइन एस। ठीक है, तो मेरा टाइम ये जो यहाँ पर जो टाइम है वो सेट हो जाएगा। फिर मुझे ये टाइम जो है डिस्प्ले करना है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा स्टेटमेंट इस तरह लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास एक इंटरफेस हो और उस इंटरफेस के थ्रू मुझे टाइम डायरेक्ट प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं ये इंटरफेस डिफाइन करता हूँ। इंटरफेस मीन्स अगेन फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसको नाम मैं देता हूँ गेट टाइम। आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सी आउट, और यह लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल टाइम, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, और यहाँ पर और कोलोन मिनट, सॉरी मिनट कोलोन सेकंड एंड एल, ताकि लाइन एंड हो। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर इंटरफेसेस डिफाइन कर दी या जो हमने मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर दी, दीज आर इंटरफेसेस स्लैश मेंबर फंक्शंस। ओके, ये सी लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर में इस तरह नहीं कर सकते। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी बजाय ये कि मैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ पास कर दूँ और इसको इस तरह में प्रिंट कर दूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट t1 डॉट जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करेंगे सिट टाइम और इसमें वैल्यूज़ पास करेंगे। फॉर एग्जांपल 9, 10, 15। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पैरामीटर h लिया, सेकंड m, थर्ड i। तो h मीन्स आवर इनिशियलाइज हो जाएगा, मिनट और सेकंड इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, और फिर गेट टाइम के थ्रू हम इसको प्रिंट कर सकेंगे, t1 डॉट गेट टाइम, सॉरी दिस इज t1। ओके, और यहाँ पर गेट टाइम है तो जस्ट इसको इसी तरह लिखेंगे। नाउ दिस इज इंटरफेस, सिट टाइम इज एन इंटरफेस फॉर मी टू सिट द टाइम, गेट टाइम इज एन इंटरफेस फॉर मी टू गेट द टाइम और टू प्रिंट द टाइम। सो राइट द रन द प्रोग्राम। ओके, सॉरी दिस इज आई, तो इसको मैं एस कर देता हूँ। ठीक है, रन द प्रोग्राम एंड द टाइम इज 9, 10, 15। ठीक है, जो वैल्यूज़ मैंने पास की है वही वैल्यूज़ यहाँ पर हर एक मेंबर को असाइन हो गई, और जब भी आप चाहे इस पर कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो वो अकॉर्डिंगली आप इन इंटरफेसेस के थ्रू इसको सेट और गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सी और सी प्लस के दरमियान डिफरेंस बताया था वो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा है कि कैन नॉट प्रिंट एज ए यूनिट। सी स्टाइल में सी में जो स्ट्रक्चर है उनको हम एज ए यूनिट प्रिंट नहीं कर सकते और सी प्लस में हम कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस डेमोन्स्ट्रेट दिस वन, हाउ टू प्रिंट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर वेरिएबल एज अ यूनिट। मीन्स यहाँ तो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह लिख दूँ कि सी आउट और t1। ठीक है, ये मुझे अभी एरर देगा। और सी प्लस प्लस में भी इसी तरह सी में भी इसी तरह होता था, लेकिन सी प्लस की एक और कैपेबिलिटी है एंड दैट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हम इसी तरह भी कर सकते हैं। सिंपल आप स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का नाम सी आउट के साथ लिखते हैं और वो
आपके पास सी आउट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस सेकंड कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.